हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विज्ञान घर। आई होप आप सबको पहला वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब तक मेरे चैनल को कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। In this video we are coming with the 20 questions of the part B of the JNU Life Science MSc Entrance Examination. Okay, so let's begin with the first question, that is what are the Casparian strips. ठीक है, so ये जो भी Casparian strips होते हैं they are the bent of cell wall material. ठीक है, so here you can see these are the Casparian strip and these are found in the endodermal cells of the roots of the plants. ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रही है कि ये आपका जो एपोप्लास्ट है उसमें एक बैरियर का काम कर रही है. ठीक है, so by providing a barrier what they will do, they will uh, they will force the water and the solute to take the symplastic route. ठीक है, so if this route is blocked, so uh, the water and solute will pass through these route, that is the symplastic route. ठीक है, so that in order to cross the endodermis layer. ठीक है, so ये जो एपोप्लास्ट होता है आपका, ये क्या होता है, नॉन इट इज प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द रूट कॉल्ड द एपोप्लास्ट. जबकि जो सिम्प्लास्ट होता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट सेल विच इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो एक हम देख सकते हैं दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. limits the pathway available to water and solute, forcing them to enter the symplast. ठीक है, this one. And one more thing, these Casparian strips are made up of suberin. ठीक है, so option number 4 is also correct. So in this question there are two options which are correct, A and D. Okay, so move to the next question. Which one of the following is not a characteristic of the plant hormone? Okay, so uh, look one by one. So they are active in a small concentration. It is correct that plant hormones are needed only in the small concentration. They are pleiotropic in their effect. Pleiotropic means they have more than one effect. Suppose we talk about the cytokines. So cytokines promote the cell division or cytokinesis as well as the morphogenesis. They are synthesized in a specific gland in tissues. In case of plant hormones, we all know that they are synthesized by the specific glands or the tissues. For example, you can say the antidiuretic hormone is synthesized by the posterior pituitary. But in case of the plant hormone, they are not synthesized in the specific glands and tissues. Okay? But their responses are tissue and time specific. So in this question, there is not. So the option C is, it is not a characteristic of the plant hormone. Next question is, in vascular plants, most cytokinins are produced in which of the following parts? ठीक है, so cytokinins are synthesized in the roots. So correct option would be 1. ठीक है, and once it is synthesized in the roots, then it will be distributed all parts of the plant through the xylem. ठीक है, and there are cambium and other actively dividing tissue also synthesize cytokinins. But in this question, the correct answer would be 1, that is the roots. The pigment that plays a key role in photomorphogenesis. So first of all, what is photomorphogenesis? ठीक है, so जो ये photomorphogenesis क्या होता है? It is a event that occurred in the presence of light. ठीक है, that is photomorphogenesis. And the pigment which play a key role is the phytohormone, that is option B. तो ये phytohormone क्या है? These are the signaling protein. ठीक है, और ये प्रमोट करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इन रिस्पॉन्स टू द रेड लाइट एंड द फार रेड लाइट. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइटो हार्मोन्स, फाइटोक्रोम्स मे बी ऑफ टू टाइप्स. टाइप 1 क्या होते हैं? एक्टिवेटेड बाय द फार रेड लाइट, एंड टाइप 2 विच आर एक्टिवेटेड बाय द रेड लाइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी. Next question. The genome of cauliflower mosaic virus is. So this type of questions are generally asked in the examinations. We know that in case of the virus, the genetic material may be DNA or RNA, and it may be single stranded or double stranded. So you should learn कि किस virus में कौन सा genetic material present होता है. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं cauliflower mosaic virus की, तो इसके केस में जो genetic material होता है that is the circular double stranded DNA.
ठीक है. So here double stranded DNA. So option C will be correct. Next question. Infectious single-stranded RNA in plants that are not associated with any protein are. So इसके इसमें आंसर जो होगा वो होगा B, viroids. Viroids क्या होते हैं? They are the smallest infectious antigens and they are composed of a circular single-stranded RNA and has no protein coding. ठीक है. सो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, infectious single stranded RNA with no protein coating. So answer would be B, that is the viroids. ठीक है. वायरस आपको पता ही है, वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. ठीक है. प्रायोन्स क्या होते हैं? इनके केस में जो होता है दे हैव ओनली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. प्रायोन्स के केस में ना तो डीएनए होता है और ना ही आरएनए होता है. ठीक है. सो आंसर वुड बी was best describe plant stem cells. ठीक है. So stem cells हमें पता है, चाहे प्लांट के केस में हो चाहे एनिमल के केस में हो, these are the undifferentiated cells. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है? जिनका फेट अभी डिसाइड नहीं है, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. ठीक है. तो स्टेम सेल्स क्या करती हैं? ये अपने नंबर को मेंटेन रखती हैं, क्योंकि ये जब डिवाइड करती हैं तो एक स्टेम सेल बनती है जिससे इनका नंबर मेंटेन रहता है, और एक सेल जो होती है वो ऐसे बनती है जो कि डिफरेंशिएट होती है डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज या ऑर्गन के लिए. ठीक है. और हम सभी को पता है कि प्लांट सेल्स जो होती हैं उनमें सेल वॉल होती है. ठीक है. एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट बट इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट. तो अगर इसके केस में हम आंसर देखें तो अ ग्रुप ऑफ compact undifferentiated cell with cell wall, that would be correct answer, option B. Okay. Next question. In hydroponics, 2 spinach plants were starved for nitrogen for about 7 days, after which one plant was transferred to ammonium containing medium and the other plant was transferred to nitrate. Initial pH of the both media was same. What changes in the medium pH is likely to take place. ठीक है. तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पालक का पौधा था उसे उन्होंने 7 दिन के लिए नाइट्रोजन से स्ट्राइव किया, फिर उन्होंने इसको 2 अलग अलग मीडियम में ट्रांसफर कर दिया. एक मीडियम में अमोनियम था, एक में नाइट्रेट था, और इनिशियल पीएच दोनों का सेम था. ठीक है. तो अब जब अमोनियम वाला जो मीडियम है वो यूज होगा तो उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, तो उस मीडियम में आपका पीएच क्या होगा? हाँ, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और नाइट्रेट वाले में आपका पीएच क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. पीएच ऑफ मीडियम ए विल रिड्यूस एंड मीडियम बी विल इंक्रीज. ओके. Next, choose the correct answer based on the given 3 statements. So here in this question they have given 3 statements. सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इन तीनों स्टेटमेंट को समझना है, एनालाइज करना है और उसके बेस पे कंक्लूड करना है कि ABCD में से कौन सा ठीक हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले ये कह रहे हैं दैट इथाइलिन नेगेटिवली रेगुलेट्स रूट elongation. ठीक है. दूसरा है ACC इज अ सबस्ट्रेट फॉर इथाइलिन बायोसिंथेसिस. ठीक है. थर्ड वन इज म्यूटेशन इन EIN2 जीन एबोलिश इथाइलिन सिग्नलिंग. ठीक है. सो अगर आपको इन सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, देयर इज नो नीड ऑफ द नॉलेज, आप सिर्फ इन 3 स्टेटमेंट के बेस पर ही इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है. तो अब इथाइलिन नेगेटिवली रेगुलेट्स रूट elongation एंड ACC इज अ सबस्ट्रेट फॉर इथाइलिन बायोसिंथेसिस. ठीक है. तो मतलब अगर आप ACC का एप्लीकेशन कर रहे हो तो क्या होगा? इथाइलिन सिंथेसाइज होगा, और अगर इथाइलिन सिंथेसाइज होगा तो रूट elongation क्या होगी? नेगेटिवली रेगुलेट होगी. किसमें? नॉर्मल प्लांट्स में. बट EIN2 जीन क्या कर रहा है? वो इथाइलिन सिंथेसिस सिग्नलिंग को ही अबोलिश कर रहा है. तो जो म्यूटेंट प्लांट है उनमें अगर आप ACC सबस्ट्रेट प्रोवाइड भी कर रहे हो तो भी इस इथाइलिन सिग्नलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि EIN2 जीन म्यूटेंट जो है वो इथाइलिन सिग्नलिंग को अबॉलिश कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर अब आप इन तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज करो तो आप देखोगे ऑप्शन सी ठीक जा रहा है. ACC एप्लीकेशन विल शॉर्टन रूट लेंथ. ठीक है. क्योंकि ACC अप्लाई किया, इथाइलिन बना तो रूट elongation जो है वो निगेटिव हो गया, मतलब रूट elongation कम हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा. किसमें? नॉर्मल प्लांट्स में. बट EIN2 म्यूटेंट में नहीं होगा क्योंकि उसने इथाइलिन सिग्नलिंग को अबॉलिश कर दिया है. ठीक है. सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट.
नेक्स्ट, मार्कर एंजाइम फॉर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया इज, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मार्कर एंजाइम्स क्या होते हैं? मार्कर एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर सेल बायोमार्कर्स विच आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ सेल टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके केस में जो मार्कर एंजाइम है दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज which is present in the inner mitochondrial membrane, ठीक है। सिमिलरली कई बार लाइसोसोम के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो आपको लाइसोसोम के लिए पता होना चाहिए द मार्कर एंजाइम इज एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नाउ the next question is the physiologist define the term homeostasis as, ठीक है। तो homeostasis तो सभी को पता है, it is the maintenance of nearly constant condition in internal environment even if the external environment is changing, ठीक है। तो अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं दे शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, अवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। So the correct option would be B. Now, the kidneys perform their function by first filtering large quantities of, ठीक है। तो हमें पता है किडनी का फंक्शन क्या होता है? यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। अब यूरिन प्रोडक्शन जो होता है ये बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद फिर ट्यूब्यूल में 2 प्रोसेसेस होती है, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलाई के थ्रू इनटू द ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो ये फिल्टर होके यहाँ इन कैपिलरी जो ग्लोमेरुलाई बनाते हैं उनके थ्रू यहाँ ट्यूब्यूल्स में चला जाता है दिस वे, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, filtering large quantities of plasma through the glomeruli into the renal tubules, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इन ह्यूमन आईज लाइट एक्सपोजर टू रेटिनल फोटोरिसेप्टर्स क्या करेगा? डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ओपन सोडियम चैनल्स और ओपन पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे जो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं उनको लाइट मिलती है तो क्या होता है कि आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो ये लाइट मिलते ही एक ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये प्रोटीन क्या करती है? इस फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का फंक्शन होता है कि ये साइक्लिक जीएमपी का ब्रेक डाउन कर देता है इनटू 5 प्राइम जीएमपी, ठीक है। अब अगर साइक्लिक जीएमपी ही अवेलेबल नहीं है तो सोडियम चैनल्स क्या है? क्लोज हो जाएंगी। सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम का इनफ्लो नहीं होगा, और अगर सोडियम का इनफ्लो नहीं होगा तो हम सबको पता है हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। एंड जो ग्लूटामेट रिलीज है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन नहीं होती हैं, सोडियम चैनल क्लोज होती हैं, ठीक है। और डीपोलराइजेशन ना होके हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो इस केस में जो भी आंसर है वो बी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following cellular arrangement from inner to outside of the retinal layer is correct? So this is the nuclear structure of the retina. यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने पूछा है inner to outer side, ठीक है। So this is inner and this is outer. तो अगर हम देखें तो सबसे अंदर क्या है? गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका बाइपोलर सेल्स है, फिर आपका ये रॉड एंड कोन फोटो रिसेप्टर आ गए, ठीक है। एंड देन आपका कोरोइड या पिगमेंटेड लेयर है। So the correct option is A. Ganglion cells, bipolar cells, photoreceptor and choroid, inside to outside. Okay. So option A is correct. Next, blood is supplied to the vasa recta in the kidney by the, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किडनी मतलब आपका ठीक है, किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के चारों तरफ जो होता है ये आपका वासा रेक्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है इसमें ब्लड लेके कौन आता है? अफरेंट आर्टरियोल, ये जो आपका अफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड लेके आते हैं,
और जो इफरेंट आर्टरियोल है ये ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है। फिर इफरेंट आर्टरियोल के बाद में जो भी आपका ट्यूबुलर फ्लूइड होता है, ये आपका जो ब्लड होता है, ये जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, विच आर पर्पल इन कलर, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के थ्रू ये आपका चला जाता है वासा रेक्टा में, ठीक है। सो ब्लड इज सप्लाइड टू द वासा रेक्टा इन द किडनी बाय द इफरेंट आर्टरियोल थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी सही होगा इस केस में। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो यहाँ वुमेन कैप्सूल में होता है, ठीक है। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड लेके आ रही है वो अफरेंट आर्टरियोल लेके आ रही है, और जो लेके जा रही है वो कौन लेके जा रही है, इफरेंट आर्टरियोल। तो अगर हम बात करें इन ऑप्शन की, तो अगर अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आ रही है। तो अगर उनका डायमीटर बढ़ेगा तो जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज कमिंग विच आल्सो इंक्रीज, दैट इज व्हाई द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विल इंक्रीज, ठीक है। So in this case the option A is correct. Glomerular filtration is increased by increased afferent arteriole diameter. Okay. So the next question is, which one of the following is correct concerning the structure and the function of the heart? ठीक है, तो let's check one by one. First option is the right atrium receives blood from the pulmonary circulation. तो राइट एट्रियम में ब्लड किससे आता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये ब्लड कहाँ से लेके आती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, टिश्यूज से। तो ये ऑप्शन 1 तो आपका गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से आता है, बट राइट एट्रियम में जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, कॉर्डी टेंडनी अटैच द सेमिल्यूनर वॉल्स टू द वॉल ऑफ द attach the semilunar walls to the wall of the ventricle. तो कॉर्डी टेंडनी क्या करती हैं, वो अटैच करती है सेमिल्यूनर वॉल को नहीं, एवी वॉल्व को, टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल को, ना कि सेमिल्यूनर वॉल को, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमें पता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इजेक्ट करता है ब्लड एओर्टा में, ठीक है। और इस एओर्टा से जो ब्लड है वो आपका जाता है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। एओर्टा से आपका ब्लड जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और लेफ्ट से जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो ये भी गलत हो गया। सो द लास्ट ऑप्शन, दैट इज द बाइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, जिनको हम एवी या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स भी कहते हैं, इनका फंक्शन होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये वेंट्रिकल में जब एक बार ब्लड आ जाता है तो उसको वापस एट्रिया में जाने से रोकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका ठीक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, बट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, ऑप्शन डी इज, ठीक है। नेक्स्ट, द इंट्रासेलुलर पोटेशियम इज नेगेटिव विद रेफरेंस टू द एक्स्ट्रासेलुलर पोटेंशियल फॉर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी सपोज ये सेल है तो इसका इंट्रासेलुलर पोटेशियम नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है इंट्रासेलुलर पोटेशियम की, इट कैन चेंज फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन के केस में तो इट इज अराउंड -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अदर सेल्स में दिस वैल्यू कैन बी डिफरेंट। अब ये वैल्यू नेगेटिव होती क्यों है, क्योंकि जो आपका इंट्रासेलुलर साइड होती है वहां पे आपका एक्युमुलेशन ऑफ जो आपके सोडियम आयन होते हैं ना, वो आपके बाहर एक्युमुलेट होते हैं और पोटेशियम आयन अंदर एक्युमुलेट होते हैं, बट ये नंबर ऑफ सोडियम आयन जो बाहर एक्युमुलेट हो रहे हैं इट इज हायर एज कंपेयर टू द एक्युमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन विच इज इनसाइड, दैट इज व्हाई आपका बाहर पॉजिटिव हो गया और अंदर नेगेटिव हो गया, ठीक है। बट दिस सिचुएशन इज प्रेजेंट ऑल द लिविंग सेल्स, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी काइंड ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। Next, gamma aminobutyric acid is a neurotransmitter which is synthesized from which of the following? So GABA जो होता है आपका ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। और ये आपका सिंथेसाइज होता है एल ग्लूटामेट से in the presence of the enzyme GAD. GAD क्या होता है, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज, ग्लूटामेट
डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स दी PLP, दैट इज दी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, इट इज दी active form of the vitamin B6. It is required as a cofactor. ठीक है। So gamma is synthesized by L-glutamate in the presence of the enzyme glutamate decarboxylase and cofactor, that is pyridoxal phosphate. So the correct option is C. सो ऑप्शन डी जो है आपका वो इस केस में ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमारे मेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो, ठीक है। And very soon you will get the rest of the videos of this 2018 question paper, and soon we are going to upload the solutions of the 2019 question paper. So for getting these videos, please visit our channel, that is the Vigyan Ghar. Okay, thank you.